हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर 11th क्लास। मीन्स इट इज़ द कोर्स कंबाइंड कोर्स ऑफ 11th प्लस नीट पॉइंट ऑफ व्यू। इन दिस कोर्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। सो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। Actually, first chapter is basic mathematics, but I think you all have the knowledge of basic mathematics, so that's why we are studying the vector for NEET. Now, देखो फिजिक्स का जो स्टार्टिंग होता है इन आवर फिजिक्स और फर्स्ट चैप्टर इज ऑलवेज फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज physical quantity like velocity, acceleration, distance, displacement, etc., which can be measured by any method is known as physical quantity. In physics, when we call physical quantity, then it may be two types. It may be scalar or it may be vector. Scalar quantities are those quantities for their representation we need only magnitude. Or we can also say that physical quantity are the quantity having only magnitude, not the direction. We don't require the direction for representation of scalar quantity. Now, what are the examples of scalar quantity? In physics, when we see energy, distance, speed, your so many examples, etc. When we discuss all these chapter, जब भी कोई चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उस चैप्टर में वी विल सी दैट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इन एवरी चैप्टर। मीन्स वेक्टर वाला जो टॉपिक है इट इज़ यूजफुल फॉर योर फिजिक्स एज वेल एज इन 11th क्लास एज वेल एज इन 12th क्लास और फॉर योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्केलर क्वांटिटी गॉट इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इज व्हाट? In vector quantity we required both magnitude as well as direction also, or we can say that physical quantity having both magnitude and direction are known as vector quantity. but ये जो दोनों conditions हैं, spite of these two conditions there will be one major conditions also there for having the vector quantity. कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो इसके लिए उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए, बट इट शुड ऑल्सो ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा, ये वेक्टर एल्जेब्रा के लॉज का ओबे करना चाहिए। इफ इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा देन इट कैन नॉट बी सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, बिकॉज सिंपली जैसे हम एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा, इन एग्जांपल्स में तो हमें डायरेक्टली क्लियरली वी कैन सी दैट दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी, बट देर आर सम एक्सेप्शंस। इन दैट केस we can't differentiate that it is the scalar quantity or it is the vector quantity. See the example of current electricity. In the example of current electricity, the physical quantity current has both magnitude and direction. See, it has both magnitude and direction, but it is still it is a scalar. Why this is scalar? Because it does not obey the laws of vector algebra. Now laws of vector algebra are what we will discuss in this chapter later. Means vector addition, vector subtraction, your vector multiplication, etc. These are the laws of vector algebra. तो ये vector algebra के law को अगर कोई physical quantity follow नहीं करेगी then that physical quantity does not said to be your vector quantity. ठीक है। Now there are some definitions related to vectors or we can call them types of vector. Basic definitions है जो vector के बारे में, जिनके बारे में we should have the knowledge. Why? Because कहीं भी आ गया what is these questions not directly asked
any examination what is axial vector, what is opposite vector, but these are the useful for so many topics. देखो first one is your equal vector, opposite vector, it also known as negative vector, axial vector, position vector, unit vector, parallel vector, anti-parallel vector and zero vector. Now we will discuss each. So our first vector is equal vector. As the name implies, इसके नाम से समझ में आ रहा है equal vector means the vectors having the values of equal. Now equal value किसका, कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा या वेक्टर होगा. फिजिकल क्वांटिटी में तो हमने डिस्कस कर लिया स्केलर एंड वेक्टर, बट इफ़ एनी वेक्टर देन इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो कोई भी दो वेक्टर when they call equal vector, then what the similarity they have, they should equal their magnitude as well as their direction. अगर उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल है, देन दे आर सेड टू बी योर इक्वल वेक्टर. देखो सी हियर, इफ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ फोर्स, दिस वन इज द फोर्स F1 इज 10 न्यूटन. ओके, इसका डायरेक्शन है ईस्टवर्ड. नाउ हियर अगेन दिस F2 इज 10 न्यूटन फोर्स, इसका डायरेक्शन भी ईस्टवर्ड है. नाउ व्हाट वी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ F1 F2 आर इक्वल and direction also equal. So when magnitude and direction both are equal, then they are said to be equal vectors. So यहाँ पे F1 F2 को क्या बोलेंगे हम, equal vector. Now another example लेते हैं. Suppose this is the example of velocity. Velocity ले लिया हमने ईस्टवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, एंड योर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में we have taken the velocity v2 is equal to 10 मीटर पर सेकेंड. See here what we see, the magnitude of both v1 v2 are same, but their direction not same, so we can call them unequal, or we can say not equal vector. So v1 vector will not be equal to v2 vector because magnitude is same but direction not same. हाँ, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे. ऐसे और भी एग्जांपल्स हम फिजिक्स के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके एग्जांपल लेके वी कैन अंडरस्टैंड द इक्वल वेक्टर्स. ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ सेकेंड टॉपिक इज योर अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर. अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन. देखो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, then it is called as equal vector. Now if magnitude is remain same but direction opposite, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर. तो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, सपोज हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है, अगर हमें उसका नेगेटिव वेक्टर रिक्वायर्ड है, देन व्हाट वी डू, वी जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. ये हमारे सबसे ज़्यादा काम आएगा आपके योर इन वेलोसिटी वाले चैप्टर में, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन. देयर व्हेन वी कंबाइन टू वेक्टर्स, व्हेन वी सब्सट्रैक्ट टू वेक्टर्स, देन देयर दिस अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर कंसेप्ट विल यूजफुल. सो करना क्या है, इफ़ हमें किसी भी वेक्टर का नेगेटिव बनाना है तो क्या कर दो, उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दो. सो सी हियर एग्जांपल ऑफ फोर्स. देखो फोर्स F1 10 न्यूटन, डायरेक्शन ईस्टवर्ड. ना हमें इसका नेगेटिव वेक्टर चाहिए, तो व्हाट वी डू, जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन. इसका डायरेक्शन हमने अपोजिट कर दिया, देन इट बिकम्स माइनस ऑफ F1 वेक्टर. ओके, तो ऐसे किसी भी वेक्टर का आपको नेगेटिव बनाना है तो उसका डायरेक्शन आप अपोजिट कर सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड वेक्टर इज एक्सियल वेक्टर. एज द नेम एम्प्लाइज, एक्सियल मीन्स एक्सिस से रिलेटेड होगा समथिंग. नाउ एक्सिस से कैसे रिलेटेड होगा, सपोज कोई वेक्टर्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं. देखो ये आपका कोई एक्सिस है, ओरिजिन है, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और यहाँ पे कोई वेक्टर रोटेट कर रहा है. द वेक्टर्स हैविंग देयर डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस. सपोज अगर ये रोटेशनल एक्सिस है
और इस रोटेशनल एक्सिस के डायरेक्शन में ही आपके वेक्टर का डायरेक्शन है, देन इट इज़ नोन एज एक्सियल वेक्टर। सी, अब ये कब यूज़ में आएगा? रोटेशनल मोशन में। वेयर इट इज़ यूज? रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन। देखो रोटेशनल मोशन में कुछ क्वांटिटीज़ होती है हमारे पास, जैसे हमने एग्जांपल में भी लिया है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, बट दीज आर रिलेटेड टू योर रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में ये सारी क्वांटिटीज़ एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, मीन्स सॉरी देयर डायरेक्शन इज हैविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस। तो रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन में ही इनका डायरेक्शन होता है, दैट्स वाई दीज वेक्टर्स आर नोन एज एक्सियल वेक्टर। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सियल वेक्टर के, और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं फ्रॉम द योर रोटेशनल मोशन। नाउ पोजीशन वेक्टर, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होती है दैट आर वेरी यूजफुल फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर्स। पोजीशन वेक्टर, position means any vector which represent the position of that particular point. See here, the vector which connect any point, which point having the coordinate means coordinate in x direction, y direction, z direction to origin, means किसी point को origin से मिलाने वाला जो vector होगा, the vector that connect any point to origin is known as your position vector. Suppose here we are taking a point P and point P having the coordinate x, y, z, suppose 1 2 3, we can call them एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, तीनों डायरेक्शन लेते हैं तो एक्स वाई जेड, दो डायरेक्शन लेते हैं तो एक्स वाई। देखो नाउ ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, दिस इज ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से इस पी पॉइंट को मिलाने वाला दैट लाइन और दैट वेक्टर इज नोन एज योर पोजीशन वेक्टर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। नाउ अभी हमने एक्स और वाई और जेड तीनों लिया है, दैट्स वाई हम यहाँ पे तीनों डायरेक्शन की बात करेंगे। तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर व्हेन वी राइट देन एक्स कौन से डायरेक्शन में? आई केप, जे केप, के केप इज व्हाट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। सो एक्स किस डायरेक्शन में? आई डायरेक्शन में, वाई जे डायरेक्शन में, के जेड के डायरेक्शन में। सो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर वी कैन राइट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप। अगर यहाँ पे दो ही होते कोऑर्डिनेट्स तो वी कैन राइट एक्स आई केप, वाई जे केप। इसी को आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं हम। चलो आगे हमारा टॉपिक यूनिट वेक्टर, जो हमने आई केप, जे केप और के केप डिस्कस किया था। यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो इसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट मीन्स व्हाट? वन। So the vector having the magnitude of unity means what? 1. The vector having the magnitude of 1 is known as unit vector. अब इसका डायरेक्शन की बात कर लें, and its direction is in the direction of given vector, and its direction is in the direction of given vector, then it is known as vector quantity. बच्चों if we require the notes of these, then you can WhatsApp me on my mobile number 9001960969, and you can also join Telegram channel. So here we are discussing unit vector. Suppose हमने कोई फोर्स ले लिया, if force F vector is a force, then unit vector in the direction of this force क्या होगा? This is the formula of unit vector. So simply यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? दिस केप, दिस इज केप, एफ केप इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन मोड ऑफ, मोड मीन्स मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का वेक्टर है। तो किसी का भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो व्हाट वी डू, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। वेक्टर मीन्स सपोज एफ वेक्टर का वैल्यू हो गया आपके पास, मान लो आपके पास वैल्यू है यहाँ पे एफ वेक्टर का 5,
आई कैप 6 जे कैप, तो क्या कर दो, इस 5 आई कैप 6 जे कैप में डिवाइड कर दो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा, अभी हमने आई कैप जे कैप डिस्कस किया था, उसकी बात कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दे कॉल आई कैप, जे कैप और के कैप। अच्छा, इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं बिकॉज दे ऑल आर हैविंग द एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में तो 90 डिग्री, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑर्थोगोनल। सो कभी भी हमें रिक्वायरमेंट हो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो हम क्या बोलेंगे, आई कैप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देन व्हाट वी कॉल जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन इज के कैप। ये आगे बहुत यूज़ में आने वाले हैं हमारे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल वेक्टर। सो सिंपली कुछ बच्चे हम रिलेट कर सकते हैं पैरेलल वेक्टर को इक्वल वेक्टर से, बट पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर आर नॉट सेम। सी हियर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। कोई भी दो वेक्टर पैरेलल कब कहे जाएंगे, व्हेन बोथ हैव द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। ये वाली कंडीशन तो उसमें भी थी आपके इक्वल वेक्टर में, बट देन वाई वी आर डिस्कसिंग पैरेलल वेक्टर। सो इसमें एक और कंडीशन है, वन वेक्टर इज पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। सपोज ये हमारे पास 10 आई कैप है ना, तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, इसका पॉजिटिव वेक्टर। पॉजिटिव मीन्स सपोज इसको किसी से भी 5 से हमने +5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देन इट बिकम्स योर 50 आई कैप। तो 50 आई कैप और 10 आई कैप दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है, ये सेम मैग्नीट्यूड, ये वाली कंडीशन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, सेम मैग्नीट्यूड नहीं होगा, केवल क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगा। दो वेक्टर हैं, दे आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड वन वेक्टर इज पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल। नॉन जीरो होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, किसका, उधर वाले का, ये वाला नॉन जीरो मल्टीपल। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में अपोजिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए वेक्टर पॉजिटिव मल्टीपल था, यहाँ पे नेगेटिव मल्टीपल हो जाएगा। नेगेटिव मल्टीपल होते ही डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सो एंटी पैरेलल आर दोज वेक्टर हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन एंड वन वेक्टर इज नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर। देखो अगर ये 50 आई कैप था तो ये क्या हो सकता है, -10 50 आई कैप, तो क्या हो गया ये -60 आई कैप। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल, उसमें इक्वल वाले में और पैरेलल वाले में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होगा, एज द नेम एम्प्लाइज, जीरो मीन्स द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो हो गया जीरो, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, तो इट्स ए डायरेक्शन रिटन हियर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मीन्स नॉट नोन टू अस, मीन्स जीरो वेक्टर का डायरेक्शन तो होता है बट वी डोंट नो दैट डायरेक्शन, है ना। सो these are the classifications of vector. Now in next video we will discuss the vector algebra, means vector addition, then after vector subtraction, then after vector addition, vector multiplication, then scalar product, dot product. We will discuss each in detail for 11th class as well as for NEET examination. यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस एक सेशन लेंगे हम जिसमें 11th क्लास के होंगे, कुछ क्वेश्चंस में सेशन लेंगे जिसमें हम नीट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से होंगे। तो जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नीट वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और जो बच्चे 11th जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल। तो इफ़ यू फाइंड द वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर करेंगे तो हो सकता है
किसी बच्चे तक ये पहुंच जाए और उनको इसका बेनिफिट मिले। सो बाय बाय, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन with vector addition।